Good afternoon, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are beginning the final unit of our paper Research Methodology. Unit 3 Workshop on Topic Development and Research Proposal. So, this unit is especially important because it takes us from theory to practice. So far, we have understood concepts, methods, and academic writing styles. Now it's time to apply that knowledge in a structured and meaningful way. In this session, we'll learn how to choose a strong and relevant research topic, refine our ideas, and development them into a clear and effective research proposal. So, this workshop will help you to think critically and organize your thoughts and build a social foundation for research work. So, by the end of this unit, you will not only understand how research begins but also gain the confidence to design your own research proposal. So, let's make this session interactive, practical, and insightful. So, unlike previous units, which were largely theoretical and concept based, this unit is designed as a hand on, skill oriented workshop. It is here that you move from understanding research to actually doing research. So, this shift from theory to application is what makes this unit extremely crucial. From theory to practice, this is a transition. So, let's briefly reflect on what we have already learned. In Unit 1, we explored the concept of research, its objectives, and how to design a research proposal, right? And in Unit 2, we focused on the technical aspects of academic writing, style manuals like MLA, APA, Chicago, citation methods, bibliography, and avoiding plagiarism. Now, in Unit 3, we will apply all that knowledge in a structured and meaningful way. So, this unit is not just about learning new concepts, it is about thinking like a researcher, asking the questions, the right questions, and identifying meaningful problems and structuring your ideas into a coherent proposal. So, let's talk about the purpose of this unit. The primary aim of this unit 3 is to equip you with practical research skills. Specifically, it will help you to identify and select a researchable topic. It will help you to refine broad ideas into focused research questions, to understand how to position your research within existing scholarship, and develop a clear and structured research proposal, right? So in simple terms, this third unit teaches you how to begin your research journey effectively, right? So first of all, you need to understand the topic development. So the first part of this unit 3 is under workshop on topic development. So this is the first part. Many students make the mistake of choosing topic that are either too broad, too vague, already over researched, or not researchable at all. So this workshop will guide you on how to move from a general idea of interest to a specific clear and focused research topic, right? So before to we will discuss on topic development, we need to talk on pre-workshop preparations. So you are expected to come prepared with the topic development and research proposal workshops. You need to identify the specific domain in your literature, your area of research, which can focus on genre, literary period, themes, and specific themes across text and specific authors and their work, right? For example, there's a broad idea like post colonial literature, right? And post colonial literature topic नहीं है, but refining it to something like, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऐसे किसी का टॉपिक नहीं हो सकता। हाँ, इस पर रिसर्च की जा सकती है, पर किसी का जो टॉपिक है रिसर्च का, वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर नहीं हो सकता। बट अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करें, तो हम यहाँ पर कुछ और
इसमें अगर और डीपली जाएं तो हम इसी के अंदर से एक टॉपिक को निकाल सकते हैं, एक टॉपिक चूज कर सकते हैं फॉर आर रिसर्च। जैसे यहाँ पर हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, representation of identity crisis in HFS things fall apart. So this identity crisis makes it researchable. So topic development involves narrowing down your focus, identifying gaps in existing research, formulating clear research questions. So before selecting a topic, you must identify your domain within literature, English literature. So your research can be based on genres. आपका जो भी रिसर्च है वो जॉनरा बेस्ड होना चाहिए. इट कैन बी पोइट्री, ड्रामा, fiction, non-fiction. You can your research can be based on periods. आप पीरियड वाइज भी अपना रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि रेनेसा, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्निज्म. इस पर भी आप अपना काम कर सकते हो. थीम्स के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो. लाइक थीम्स जैसे आइडेंटिटी हो गई, यहाँ पर आइडेंटिटी की बात हो रही है. जेंडर हो गया, क्लास, रेस, कॉलोनियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इनकी बात कर सकते हो. और ऑथर्स बेस्ड भी आपकी रिसर्च हो सकती है. इसमें आप स्पेसिफिक राइटर्स या उनकी कंपैरेटिव स्टडीज़ पर आप रिसर्च कर सकते हो. सो दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन एंड क्लैरिटी टू योर रिसर्च. सो मतलब टॉपिक चूज करने के लिए यू नीड टू रिव्यू एग्जिस्टिंग स्कॉलर्स. So this is very important. This is another key aspect of this unit, to understand the importance of reviewing research, existing research. So before you begin your research, you must know what has already been done, कि पहले क्या क्या हो चुका है उस टॉपिक से रिलेटेड, ये तुमको पता होना चाहिए. एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मिसिंग, कि जो भी एग्जिस्टिंग काम हो चुका है उसमें क्या रिसर्च गैप था. ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि वही रिसर्च गैप ही आपका रिसर्च का टॉपिक बनेगा. एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेयर योर रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स. So you will learn how to use academic database like JSTOR, Google Scholars, and many more. You need to, you will learn how to analyze previous studies and position your research within existing academic conversations. So no. So let's talk about part A, workshop on topic development. So today's class is not just about understanding research, it is about learning how to think like a researcher. So the focus of this workshop is topic development, which is the foundation of any successful research work. A weak topic leads to weak research, while a well developed topic leads to clarity, depth, and originality. So, today we'll learn how to move from confusion to clarity. So, the first topic is, what is the topic in literature? Topic क्या होता है? Right, so let's begin with a simple question. What is a topic? So a topic is not just a general idea. हम इसको एक general idea नहीं बोल सकते. It's a focused area of inquiry that allows you to explore a specific issue in depth, right? So यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉड टॉपिक क्या होता है और फोकस टॉपिक क्या होता है. स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज दिस. ब्रॉड का मतलब हो गया जैसे कि लव इन लिटरेचर, एंड फोकस टॉपिक हो गया द रोल ऑफ इम्पल्सिव लव इन रीशेपिंग ट्रेजेडी इन रोमियो एंड जूलियट. ये एक टॉपिक हो गया. सो दिस इज द फोकस टॉपिक. जैसे मैंने बात की थी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, तो ये तो ब्रॉड टॉपिक हो गया, इसमें आप बहुत सारी रिसर्च कर सकते हो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी क्राइसिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, सो दिस इज फोकस टॉपिक. तो ये दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड एंड फोकस्ड. फोकस इतना मतलब ये बहुत बड़ा होता है और ये लिमिटेड होता है. सो अ ब्रॉड टॉपिक इज़ टू जनरल एंड कांट बी अ रिसर्च इफेक्टिवली. अब मैं आपको कहूँ कि मुझे इंडियन लिटरेचर पर रिसर्च करना है, तो ये ब्रॉड टॉपिक हो गया. अब इंडियन लिटरेचर में तो हज़ारों चीज़ें हैं, किस पर रिसर्च करना है. बट अगर मैं बोलूँ कि द आइडेंटिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन इंडियन लिटरेचर, मुझे इस पर रिसर्च करना है, या फिर मुझे विमेन राइटिंग पे करना है. विमेन में भी कौन सा विमेन,
कौन सी विमेन, दलित विमेन, अपर क्लास विमेन, वर्किंग विमेन, इलिटरेट विमेन, कौन सी विमेन पे काम करना. सो दिस कैन बी अ फोकस टॉपिक, राइट. जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया लव इन लिटरेचर. तो लिटरेचर तो बहुत टाइप का है, उसमें बहुत टाइप का लव है, तो वो ब्रॉड टॉपिक हो गया. अगर मैं बात करूँ द इम्पल्सिव लव इन शेपिंग ट्रेजेडी इन रोमियो एंड जूलियट, तो ये फोकस टॉपिक हो गया. सो अ ब्रॉड टॉपिक इज टू जनरल एंड कांट बी अ रिसर्च इफेक्टिवली, बट अ फोकस टॉपिक अलाउज यू टू आस्क क्वेश्चंस, एनालाइज एंड आर्ग्यू, राइट. सो जब आप टॉपिक चूज़ करते हैं तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या आपका स्ट्रगल होता है, क्या आप फील करते हो अपने टॉपिक के लिए कि वो कितना जनरल है और कितना क्लियर है. सो दिस रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टॉपिक डेवलपमेंट बिगिंस विथ रिकग्नाइजिंग कन्फ्यूजन, राइट. इसमें एक टॉपिक है जनरेटिंग आइडियाज़. सो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोज रीडिंग की, राइट. मतलब कहाँ से टॉपिक आता है, तो वो जनरेट, मतलब आइडियाज़ जो होते हैं वो कहाँ कैसे जनरेट होते हैं, वो जनरेट होते हैं क्लोज रीडिंग से. क्लोज रीडिंग में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है. सो द नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू टॉपिक्स कम फ्रॉम. सो द टॉपिक्स आर नॉट रैंडमली चूजन, ऐसे रैंडमली आप चूज नहीं करते, दे आर इमर्ज फ्रॉम केयरफुल रीडिंग, राइट. क्लोज रीडिंग जिसका पार्ट है, केयरफुल रीडिंग, observation, sorry for this handwriting, and curiosity, right. So topics are emerged from careful reading, observation and curiosity. So close reading जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है paying attention to the language, symbols, patterns and themes. So not just reading what is written, but asking why and how, right. So while reading a text, we come across, like we have to face some questions. जैसे कि आपने कोई भी आपने लिटरेचर पढ़ा जिस पर आपको रिसर्च करना है, कोई भी पर्टिकुलर आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा जिस पर आपको रिसर्च करना है. सो वाई रीडिंग अ टेक्स्ट यू हैव टू आस्क कि विच थीम स्टैंड्स आउट, कौन से थीम यहाँ से आ रहे हैं. इट कैन बी जेंडर, आइडेंटिटी, पावर, क्लास, कॉलोनियलिज्म, राइट. पहला क्वेश्चन तो ये आपका ये हो गया. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट लार्जर सोसाइटल इशूज, जैसे ऑपरेशन, रेजिस्टेंस, आइडेंटिटी क्राइसिस, रेस बाइज्ड, क्लास ऑपरेशन, इन सब की बातें हो रही हैं. तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द सेटिंग इन्फ्लुएंस मीनिंग, राइट. the text can be historical, cultural, political context. तो कैसे ये जो setting है influence करती है इसके meaning को, right. And the next question is what symbols or patterns are repeated in the text, right. And the last question is what seems unresolved and problematic. So these questions, I hope you have written these questions, मैंने यहाँ नहीं लिखा है. So these questions help you to discover research worthy ideas, right. So you need to you need to use the context to develop idea. एक अच्छा टॉपिक तभी आता है जब वो कनेक्ट करता है टेक्स्ट से विद कॉन्टेक्स्ट. अब कॉन्टेक्स्ट भी कई तरह का हो सकता है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इट कैन बी historical, cultural, social, authorial and political. So when we say use context, so we are not just adding background information, we are transforming simple readings into critical research thinking. So context helps us answer not just what is happening in the text, but why it is happening and what does it mean beyond the text. So the first question is what is the context in literary research. So in literature we can say that context refers to all the external factors that influence a text meaning. It includes historical backgrounds, social conditions, political environment, cultural practices, and authorial means author's life and ideology. So in simple words we can say that context means the world behind the text. So context is very important for topic development.
Without context, your topic becomes descriptive and your analysis becomes superficial. But if you refer the context, so your topic becomes analytical and your research becomes meaningful and original, right? So suppose I'll give you an example. Without context, you can say women in a novel, right? But with context, you can take a you can made a topic, representation of women in relation to patriarchal norms in Victorian society, right? So we have different types of context. The first is historical context. Yes, historical context. This refers to the time period in which the text was written and important events like wars, colonization, industrialization. So, what was happening in the society at the time, you need to ask while researching, and how does the text reflect or respond to it, right? Example for, if the text is about colonial period, so it leads to post colonial themes like identity, resistance, and hybridity, right? If we talk about social context, so this includes class structure, gender roles, social hierarchies, and cultural norms. So you need to ask to the literature that what social issues are reflected in the text, and how do characters represent social realities. For example, if a character's struggle may reflect class oppression or identity inequality, so this is the good example of social context. If we talk about the political context, so it focuses on power structure, authority, resistance, and ideologies like colonialism, nationalism. So you need to ask that who holds the power in the text, who is the oppressor, who is the oppressed one, and how is the power challenged. For example, in colonial text, of this text often show the conflict between colonizers and the colonized, right? If we talk about the cultural context, so it includes traditions, beliefs, languages, rituals. So you need to ask to the literature like how does the culture shape characters and actions, and what culture conflict are represent. Example for, in a text there is a clash between traditional values and modern influences, right? And the fifth is authorial context. So this focuses on author's background, personal experience, ideology. So you need to ask in your research that does the author's life influence the text, and what perspective is the author's presenting. So like example for example, I can say that a post colonial writer may write from a resistance or critical perspective. So these contexts help to generate research topics, right? इसलिए ये generating ideas को बहुत ज़्यादा help करते हैं. So the context help you to move from simple observation to critical inquiry. There's a process to follow this context. You should first read the text, then identify an interesting theme, connect it to the context, and ask deeper questions, and then form a research topic, right? So जैसे कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उस नॉवल पे रिसर्च करना है. सो बेसिक आइडिया जो है उसका आपको वो पहले फाइंड आउट करना होगा. सपोज आपने पहला जो स्टेप था वो था बेसिक आइडिया. सो बेसिक आइडिया आपको आया कि आइडेंटिटी इन द नॉवल, तो इस पर रिसर्च करना है, राइट? सो आपने जब इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, तो कॉन्टेक्स्ट था कॉलोनियलिज्म, तो ये टॉपिक बन गया आइडेंटिटी इन कॉलोनियल सोसाइटी हुआ. फिर यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन लाइक हाउ डज द कॉलोनियल रूल अफेक्ट आइडेंटिटी, राइट? फिर वहीं से फाइनल टॉपिक बना हाउ डज द कॉलोनियल रूल अफेक्ट आइडेंटिटी, और इसका इम्पैक्ट ये बना कि फाइनल टॉपिक ये हो गया द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन द नॉवल. तो इस तरह से टॉपिक डिसाइड होता है एकदम एग्जैक्टली. मतलब आप बिल्कुल सीधा टॉपिक पे नहीं जाते, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं. So that now we will talk about the turning context into research question. So the context becomes powerful when you convert into the question, right? Question हो गया ये. And
Like example for how does the colonial history shape the character's identity, how do gender roles in a particular society affect female characters, and how does the class structure influence the character relationship. And the another question is how does the cultural conflict create tension in the narrative. So these questions becomes the foundation of your research topic. Then you have to combine the context with theory. So the best research topic combine context with theory. The context is colonial society and the theory is post colonialism. So the best research topics can come through this procedure. It can be the post colonial analysis of identity and cultural conflict in the text, right. इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप इसमें कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेट्रियार्की सोसाइटी प्लस फेमिनिज्म, तो वो फिर वो टॉपिक बन जाएगा फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर रोल्स एंड प्रेजेंटेशन, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, मतलब टॉपिक बनाने का प्रोसीजर ये होता है। इसमें एडवांस अंडरस्टैंडिंग भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो डेप्थ क्रिएट करता है। अगर हम विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम कोई टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं तो वो ऐसा होगा कि स्टडी ऑफ अ करेक्टर, राइट। बट विद कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ अ करेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। सो दिस शिफ्ट मेक्स योर रिसर्च डीपर, मोर क्रिटिकल एंड मोर एकेडमिक। कुछ गलतियाँ यहाँ बच्चे करते हैं, जैसे कि दे ट्रीट कॉन्टेक्स्ट एज जस्ट बैकग्राउंड, वो नहीं करना है। स्टूडेंट्स ऑफन इग्नोर हिस्टोरिकल सोशल फैक्टर्स, वो भी नहीं करना है। एंड दे चूज द टॉपिक्स विदाउट डीपर रिलेवेंस, तो ये भी नहीं करना है। एंड दे डोंट कनेक्ट the context with argument. So you need to remember to avoid these mistakes while selecting a topic, while generating a topic. So the context is not extra, it's a central to research, right। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक थीम है लव इन लिटरेचर, तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर रिसर्च करनी है आपको, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि आपको किस एरिया में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ पता ही नहीं है, राइट। जैसे मैंने आपको टॉपिक दे दिया लव इन लिटरेचर, राइट, ये मैं टॉपिक दे दिया। अब इसमें आप सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा लव वर्सेस सोसाइटी, राइट। लव वर्सेस सोसाइटल नॉर्म्स। अगर हम यहाँ पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लव वर्सेस ट्रेडिशंस, राइट। सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, ये ट्रेडिशंस है। अगर हम यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लव इन अ स्पेसिफिक पीरियड, कोई भी पीरियड हो सकता है, लव इन विक्टोरियन पीरियड, लव इन रेनेसा, इस तरह का टॉपिक हो जाएगा। सो द फाइनल टॉपिक कम्स बिटवीन लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन अ गिवन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, या फिर लव द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ट्रेडिशन। इस तरह से कुछ भी टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हो, right। So a good researcher does not just read the text, they read the text with their context. So using context is in topic development helps you to think critically, ask deeper question and create meaningful research topics. So it transforms your work from simple description to analytical and interpretative research, right। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नैरोइंग द फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। After generating idea, next and most crucial step in research is narrowing the focus. Most students don't struggle with the idea, they struggle with too many ideas. एक idea से नहीं, कई सारे ideas से struggle करते हैं, and they choose topic that are too broad, too vague, difficult to manage. That is why narrowing the focus is essential. Research does not begins with answers. ये बहुत सही बात है। ये जो रिसर्च होती है वो आंसर से शुरू नहीं होती है, इट बिगिंस विथ क्लियर एंड फोकस क्वेश्चंस। लाइक नैरोइंग द फोकस का यहाँ मतलब है रिड्यूस अ ब्रॉडर टॉपिक into a specific, clear and researchable problem. It involves limiting the scope, it defines boundaries and it is making the topic manageable. जैसे मैंने बात की थी लव एंड लिटरेचर की यहाँ पर,
राइट। सो लव इन लिटरेचर तो ब्रॉड हो गया, इसको हम थोड़ा नैरो कर सकते हैं कि लव इन शेक्सपियर्स प्लेस, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सो देखिए, ये जो टॉपिक है लव इन लिटरेचर, दिस इज़ ब्रॉड, क्योंकि ये कोई अच्छा रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड है, इसमें आपको किस डायरेक्शन में जाना है हमें कुछ नहीं पता। अगर हम इसको थोड़ा नैरो करें तो होगा ये लव इन शेक्सपियर प्लेस। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन है, लेकिन ये उतना ज़्यादा नैरो नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर के तो बहुत सारी प्लेज है, अब कौन सी प्लेस में लव की बात होगी इस रिसर्च में हमें नहीं पता। अगर थोड़ा और फोकस करेंगे तो हो जाएगा इम्पल्सिव लव इन रोमियो एंड जूलियट। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन अगर इसे और ज़्यादा हाईली फोकस बनाना है तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हाउ इम्पल्सिव लव लीड्स to tragedy in Romeo and Juliet. So this is a good example of a good research topic. So this is how a general idea becomes a research question, right? So narrowing the focus is very important. If your topic is too broad, you can't analyze deeply, your argument becomes weak and your research becomes descriptive. If your topic is focused, then your arguments becomes clear, your analysis becomes strong, and your research becomes original. So depth is more important than breadth. So देखिए, जैसे ये मैंने आपको एक टॉपिक्स को मैंने ब्रॉड टू हाईली फोकस बनाया, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सो इन स्टेप वन यू नीड टू स्टार्ट विद जनरल आइडिया. सो टू चूज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, इट कैन बी आइडेंटिटी, इट कैन बी जेंडर, पावर एंड कॉलोनिज्म. आपने सपोज आइडेंटिटी चूज कर लिया, ठीक है, आपने आइडेंटिटी चूज़ कर लिया. अब यू नीड टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड ऑथर. सो आपने आइडेंटिटी लिटरेचर चूज़ किया इंस्टेड ऑफ लाइक, मतलब आइडेंटिटी लिटरेचर की जगह आपने चूज़ कर लिया आइडेंटिटी इन थिंग्स फॉल अपार्ट. सो ये एक स्पेसिफिक ऑथर का काम हो गया, राइट. अब आपको इस स्कोप को लिमिट करना है, जिसमें आपको एक थीम चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए और एक ही एस्पेक्ट चाहिए, राइट. जैसे आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करनी है. अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो फीमेल ऑपरेशन की बात करनी है. अगर हम पावर की बात करें तो कल्चर डोमिनेशन की. सो दिस इज द प्रोसेस. इन द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट एम आई स्टडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाउ डज इट वर्क एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, like how does colonialism affect identity, and why does a character experience conflict. So form a research question. तो जब आपको आइडिया क्लियर हो जाता है, प्लस वो स्पेसिफिक हो जाता है और एनालिटिकल हो जाता है, सो तब एक अच्छा रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो रेडी हो जाता है, राइट. सो कुछ टेक्निक्स होती हैं इसकी टू नैरो योर टॉपिक. जैसे सबसे पहला स्टेप इसका ये है, लिमिट बाय टेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ मेनी टेक्स्ट चूज वन और टू, राइट. जैसे कि शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ की बात मत कीजिए, कोई एक ट्रेजेडी ले लीजिए, तो एक ट्रेजेडी हो गई रोमियो एंड जूलियट. अब इसमें भी कई सारी थीम्स होंगी, तो इसमें कोई एक एस्पेक्ट चूज़ कर लीजिए. जैसे कि लव को चूज़ मत कीजिए, इम्पल्सिव लव या फॉरबिडन लव, ऐसा कुछ चूज़ कर लीजिए. अब अगर बात करें पर्सपेक्टिव की, तो इसको भी लिमिट करना है. अब इसमें कई सारी थियोरेटिकल लेंसेज है, जैसे कि फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म. सो आप बात कर सकते हैं फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ जेंडर रोल्स, ठीक है, यहाँ आपने पर्सपेक्टिव भी लिमिट किया. अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की, तो कॉन्टेक्स्ट को भी आपको लिमिट करना है. हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल कुछ भी हो सकता है. आपने ले लिया जेंडर रोल्स इन विक्टोरियन सोसाइटी, मतलब ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा है. अब आप कैरेक्टर्स को भी या एलिमेंट्स को भी आप लिमिट कीजिए. बहुत सारे कैरेक्टर से बात करने से अच्छा आप एक कैरेक्टर ले लीजिए, या एक सिंबल ले लीजिए, एक रिलेशनशिप ले लीजिए. जैसे कि थिंग्स फॉल अपार्ट में ओकोंको की बात कर ली जाए, ओकोंकोस आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो फ्रॉम टॉपिक टू थीसिस, अ नैरो टॉपिक लीड्स टू अ थीसिस स्टेटमेंट. कोई भी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड या वॉग नहीं होना चाहिए. अ गुड टॉपिक नेचुरली बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. अ फोकस टॉपिक ऑफन स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, जैसे कैरेक्टर्स हैं तो सोसाइटी की बात हो सकती है, थीम से, कॉन्टेक्स्ट की, लैंग्वेज से, मीनिंग की. सो द रिलेशन बिटवीन लव एंड सोसाइटल प्रेशर, रिलेशनशिप एंड आइडेंटिटी, कॉलोनिज्म. और इसमें भी कुछ बच्चे जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, जैसे कि दे चूज़ अ टॉपिक दैट आर टू ब्रॉड,
They try to cover too many ideas. They don't define the clear boundaries. They write descriptive topics instead of analytical one. तो ये सब मिस्टेक नहीं करनी है. आपका आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए, राइट. जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया, इस पर आप कुछ और भी सोच सकते हैं. जैसे लव इन लिटरेचर था, ये बहुत ब्रॉड था. इसमें हमने एक नैरोनेस दिखाई कि हमने लव इन शेक्सपियर प्लेस चूज़ किया. ये अभी भी ब्रॉड है. इसको अगर और फोकस करना है ताकि अच्छी रिसर्च हो, तो इम्पल्सिव लव की बात कर सकते हो. और अगर हाईली फोकस चाहिए, तो हाउ इम्पल्सिव लव लीड्स टू ट्रेजेडी इन रोमियो एंड जूलियट, आप इसकी भी बात कर सकते हो, राइट. सो बिफोर बिफोर चूजिंग अ टॉपिक ऑलवेज टेस्ट योर टॉपिक कि क्या मैं इसको डिटेल में मैं इसका आंसर कर पाऊँगा. Is it too broad? Does it require analysis or just description? If your answer is unclear, then your topic is not focused enough, right? So a good topic is not the one that covers everything, but the one that explains something deeply. सब कुछ cover नहीं करना है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें उनको deeply analyze करना है, explain करना है. So narrowing the focus is a step where idea becomes clear, questions become sharp, and research becomes meaningful. मतलब narrowing the focus transforms confusion to clarity, general ideas to research problem, and topic to arguments, right. अब next topic है इसमें structuring the arguments. So after selecting and narrowing the topic, the next crucial step is structuring the arguments. A topic alone is not enough. A researcher must take a position and make a claim and support it with evidence. So this is what we call an argument in research, right. So, in academic writing, an argument does not mean a fight or disagreement. It means a clear and logical claim that you prove using evidence and analysis. For example, if the research is weak, it means this is descriptive. So this paper discusses love in Romeo and Juliet, right? But the strong argument is this paper argues that impulsive love in Romeo and Juliet leads to tragedy by overriding rational thought and social boundaries. So a strong argument takes a position. A strong argument is debatable and it requires proof. देखिए इसका रोल क्या है thesis statement में. So the thesis statement is the heart of your argument. It clearly states your main claim, it guides your entire research, and it tells the readers what you will prove, राइट. सो एक अच्छी थीसिस जो होता है उसका फीचर्स होते हैं कि उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्लियर एंड स्पेसिफिक होता है, एनालिटिकल होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं एनालिटिकल होता है, डिबेटेबल होता है, फोकस्ड होता है, राइट. अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज बिल्ट इन लेयर्स. तो पहला लेयर उसका होता है क्लेम, जिसको हम थीसिस कह सकते हैं. सो व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग, दिस इज क्लेम. द सेकेंड इज रीजन. So reason matlab why do you think this is true, and the third is evidence. Evidence is what proof do you have, and the fourth is analysis. So how does the evidence support your claim? So this is a formula: claim, reason, evidence, analysis, and then conclusion, right. So after your thesis you divide your research into main arguments. Each paragraph should focus on one idea, support the thesis, right. जैसे कि अगर मैंने एक टॉपिक चूज़ किया था अभी, मतलब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, इम्पल्सिव लव लीड्स टू ट्रेजेडी इन रोमियो एंड जूलियट. सो द मेन आर्ग्यूमेंट इज लव ओवरराइड्स रैशनल डिसीजन मेकिंग, सोशल प्रेशर इंटेंसिफाई द कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल impulsiveness leads to fatal choices. So each point becomes a paragraph. So this is called um, the claim, right. Now you need to know the how can we use the evidence. So arguments are not opinions, they must be supported by evidences. अब evidences भी कई types के हो सकते हैं. It can be textual, right. Textual evidences हो सकते हैं, जैसे quotes from the text. आप quotes रेफरेंस में यहाँ डाल सकते हो. इवेंट्स को, कैरेक्टर्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लिटरेरी डिवाइसेस को.
जैसे कि सिम्बॉलिज्म, इमेजरी, टोन, ये सब। और क्रिटिकल रेफरेंस, क्रिटिकल रेफरेंस की भी बात हो सकती है, ठीक है, जैसे स्कॉलर्स और थियोरीज क्या कहती हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, राइट। सो बहुत ज़रूरी है एनालिसिस यहाँ पर। मेनी स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक, लाइक दे ओनली गिव कोट्स बट डू नॉट एक्सप्लेन देम। तो अगर आप कोट कर रहे हैं, आप टेक्स्ट की लाइंस को यहाँ पर रेफरेंस, एज रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है, एनालाइज भी करना है। यू नीड टू इंटरप्रेट द एविडेंस, यू नीड टू कनेक्ट इट टू योर आर्ग्यूमेंट, राइट। सो कोट जो अगर आप करते हैं तो आपको ये बताना कि व्हाट डज इट शो, ये क्या दिखा रहा है, एंड हाउ डज इट सपोर्ट योर थीसिस। सो विदाउट एनालिसिस योर आर्ग्यूमेंट इज इनकम्प्लीट, राइट। और आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना, उसमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। योर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कनेक्टेड, लॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव, राइट। तो आप कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, इन कंट्रास्ट, ये सब यूज़ कर सकते हो। दिस क्रिएट्स अ स्मूथ फ्लो इन योर राइटिंग। अब हम स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ में ये थियोरी फॉलो होती है, पील, राइट। पील मेथड, पील मतलब पॉइंट, मतलब मेन आइडिया। ई मतलब एविडेंस, सेकेंड ए इज एक्सप्लेनेशन, and link, L for link, that connect to thesis. So point is main idea, evidence is examples, quotes, explanation is analysis, ये आप खुद लिखते हैं analysis को, and link, बाद में आपको इस quote को जो आपने evidence दिया अपनी explanation के through link करना है अपने main point से, right। तो this is called structuring the paragraph। अब जैसे आपने पॉइंट लिया, लव इज इम्पल्सिव थ्रू रोमियो एंड जूलियट, तो आपको वो टेक्स्ट में से वो एग्जाम्पल्स, वो डायलॉग्स कोट करने होंगे कि लव कैसे इम्पल्सिव है, और फिर अपनी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई इट मैटर्स, दीज पर्टिकुलर कोट्स, हाउ डज इट मैटर्स थ्रू इन योर argument, and you need to connect these points to tragedy to show the tragedy, right। तो कॉन्टेक्स्ट का भी काफ़ी रोल है आर्गूमेंट्स में। कॉन्टेक्स्ट की बात ही हमने की थी ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आर्गूमेंट्स बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन कनेक्टेड टू सोशल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल फैक्टर्स, नॉट जस्ट कैरेक्टर बिहेवियर बट हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। सो आप ये भी करेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे आप, उसके बाद थियोरी भी यूज़ करेंगे, जैसे कि योर आर्गूमेंट कैन बी स्ट्रेंथेंड यूजिंग फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, राइट। तो वो भी आप यूज़ करोगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत अच्छा रिसर्चर होता है ना, दे ऑल्सो कंसीडर्स अपोजिंग व्यूज़। काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके चीज़ें लिखेंगे। ये बहुत जो अच्छे रिसर्चर्स होते हैं ये वो काम करते हैं। उसमें वो उन अपनी थियरीज़ के जो अगेंस्ट थे, जो जो भी और लोग थे, उनको वो एक्नॉलेज करते हैं, रिफ्यूट करते हैं उनको। मे बी सम may argue X, however the study demonstrates Y, so this makes your argument more credible। अब इसमें भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे हम, रिसर्चर गलतियां करते हैं, लाइक दे डिस्क्राइब इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू करने की जगह आप डिस्क्राइब करो, ये गलती आपकी। आपको क्लियर थीसिस आपका लैक हो रहा है, क्लियर नहीं है आपकी थीसिस, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, या एविडेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी एक कमी है। आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक मिस्टेक है। और स्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो वो भी आपके आर्गूमेंट्स को गलत कर देता है, राइट। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर टू आंसर माय एक्टिविटी। आपको एक टॉपिक मैंने दे दिया, लव इन रोमियो एंड जूलियट, राइट। अब आपको यहाँ पर एक थीसिस लिखना है, एटलीस्ट आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं एंड 1 एग्जाम्पल फॉर ईच आर्ग्यूमेंट। तो आप लिखिए, कमेंट सेक्शन है आपके पास, कोशिश करिए इसको लिखने का। आपको एक थीसिस लिखना है, ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, बहुत छोटा सा लिखिएगा। तो रोमियो एंड जूलियट को पढ़िए, और या कोई भी टेक्स्ट, चलिए इसको नहीं लिखना है, आपको जो पसंद हो वो लिखिए। ये थीम भी आपको पसंद नहीं आ रही है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप थीसिस लिखेंगे उसमें आप कम से कम 3 आर्ग्यूमेंट्स देंगे, और हर आर्ग्यूमेंट के लिए एक एग्जाम्पल भी देंगे फ्रॉम द टेक्स्ट,
राइट. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था. To structuring arguments, research is not about what the text says, but about what you can prove about the text. Right? So, structuring arguments is where idea becomes claims, claims become arguments, and argument becomes research. Right? चलिए अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं. दिस इज अबाउट वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रपोजल. So the second part and the last point of our this class is workshop on research proposal. So if your topic is the idea, then your research proposal is the blueprint of your entire research. Research proposal जो होता है ना, ये जब आप कभी PhD में एडमिशन लेंगे ना, तो वहाँ आपको ये देना पड़ता है. एडमिशन होने से पहले इंटरव्यू होता है PhD में एडमिशन लेने के लिए. उस इंटरव्यू में आपको ये दिखाना होता है. इट्स काइंड ऑफ अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर एंटायर रिसर्च. तो जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं वहाँ पर आपको अपने रिसर्च प्रपोजल के थ्रू ये पूरा रोड मैप दिखाना होता है कि आपका आइडिया क्या है और आप कैसे कैसे काम करना चाहते हैं. राइट. तो टॉपिक आपका आइडिया है और उस आइडिया पर किस तरह से काम होगा, पूरा एक ब्लूप्रिंट है आइडिया को दिखाने के लिए. उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल. बिफोर any research begins, it must be planned, structured and justified. So that is exactly what a research proposal does. Right. A research proposal is a formal academic document that explains what you are going to research and why it is important, how will you conduct it. तो आपके रिसर्च प्रपोजल में जो प्रोफेसर होते हैं जिनके अंडर आपको एडमिशन चाहिए होता है PhD में, वो 3 से 4 चीज़ें देखते हैं. कि पहली चीज़ की जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसमें जो आइडिया है आपने उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है कि वो क्या आइडिया है, आप क्या रिसर्च करने वाले हैं वो भी आप उसमें बताते हैं, और ये रिसर्च इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आप बताते हैं. इंपॉर्टेंस भी तो बतानी है ना. और नेक्स्ट चीज़ कि आपकी जो रिसर्च अगर होगी, अगर आपको एडमिशन मिल गया PhD में, तो आपकी जो भी रिसर्च होगी या 4th ईयर में आपको एडमिशन मिल गया, तो वो किस तरह से सोसाइटी को, एकेडमिक फील्ड को, रिसर्च फील्ड को किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी. राइट. और लास्ट एंड मोस्ट चीज़, उस रिसर्च को आप करोगे कैसे, हाउ विल यू कंडक्ट इट, वो सब बताया जाता है रिसर्च प्रपोजल में. इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट रिसर्च प्रपोजल आंसर्स 3 मेन क्वेश्चंस. व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाई आर यू स्टडिंग एंड हाउ विल यू स्टडी इट. Right. So research proposal is to present your research idea clearly, to convince your supervisor or the committee, and to show that your research is valid, feasible and meaningful. Right. So a good proposal does not just describe a topic, it argues for its importance. तो research proposal बहुत important होता है. रिसर्च प्रपोजल इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी. आप इसको फॉर्मेलिटी बिल्कुल मत समझिए, ये बिल्कुल भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. इट हेल्प्स यू टू क्लैरिफाई योर रिसर्च डायरेक्शन. कई बार ना क्या होता है, रिसर्चर खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि एक बहुत PhD थीसिस बहुत बड़ा काम होता है, 4-5 साल का काम होता है. तो कई बार ना जैसे हम खुद भी बीइंग द रिसर्चर हम खुद भी ना मिसगाइड हो जाते हैं. तो उस समय पर हम अपना रिसर्च प्रपोजल फिर से खोल कर देखते हैं कि क्या रोड मैप था हमारा, हमें कैसे जाना था. So it clarifies your research direction, it identifies the research gaps, it's kind of planning your methodology and avoiding confusion later and getting approval for research. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये एक तरह का रोड मैप होता है बिफोर स्टार्टिंग का जर्नी, और ये भी कह सकते हो कि एक तरह का स्केलेटन है बिफोर बिल्डिंग अ बॉडी. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग द components. Yes, we need to understand this. This is a core structure. This is the actually heart of today's lecture, the components of a research proposal. तो पहली चीज़ होती है इसमें टाइटल. Right. Title is the first impression of your research. So the first component is title. This is the identity of your research. A title is not just a heading, it's a compressed version of your entire research. A strong title reflects the topic, like what you are studying, scope and approach. So topic is about what are you studying, scope is which text and area, and approach is which theory or angle, right?
अब कुछ टाइप्स है टाइटल्स के, जैसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इज एनालिटिकल एंड द थर्ड इज कंपाउंड. So descriptive title clearly states the topic like identity in post colonial literature, तो ये descriptive हो गया. अगर analytical करें तो इसमें arguments और perspective भी add हो जाता है, जैसे कि सिर्फ आइडेंटिटी की बात नहीं होगी, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज़ की बात हो जाएगी इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये बेस्ट होता है. कंपाउंड टाइटल इज़ बेस्ट फॉर रिसर्च. इट यूजेस कॉलोन टू डिफाइन द एग्जाम्पल, जैसे कि रीक्लेम आइडेंटिटी कॉलोन अ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी ऑफ एचबीज थिंग्स फॉल अपार्ट. सो टाइटल आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉग नहीं होना चाहिए, कोई इंडिकेशन नहीं होना चाहिए ऑफ मेथड और फोकस, राइट. सो योर टाइटल शुड आंसर व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग इन वन लाइन. सेकेंड कंपोनेंट है आपके रिसर्च प्रपोजल का, वो है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कल भी की थी. ये मिनिएचर प्रपोजल होता है बेसिकली. सो व्हाट डज इट रियली डज, इट्स अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ योर एंटायर प्रपोजल, लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ मूवी. जैसे मूवी देखने से पहले आप ट्रेलर देखते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही ये आपकी थीसिस का ट्रेलर है. ये इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट में भी एक से इसमें पूरा इसका भी स्ट्रक्चर होता है. जैसे इसमें आप ये लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. जैसे कि 1 से 2 लाइन में आप बैकग्राउंड लिखते हैं, पहली चीज़. दूसरा बैकग्राउंड लिखते हैं. दूसरा आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं. तीसरे में आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं. चौथे में आप मैथडोलॉजी बताते हैं, राइट. फिफ्थ में आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, राइट. ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आते हैं. सो अ गुड एब्स्ट्रैक्ट इज इंफॉर्मेटिव, इट कांट बी वॉग, इट्स सेल्फ कंटेन्ड, अंडरस्टैंडेबल विदाउट फुल प्रपोजल. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से ही आपकी थीसिस की नॉलेज हो जाए, इतना अच्छा होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट. एंड प्रिसाइज होना चाहिए, नो अननेसेसरी वर्ड्स इंक्लूड देयर. सो कई बार क्या होता है कि रिसर्चर ना एब्स्ट्रैक्ट में जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है. वो मेथडोलॉजी को मेंशन नहीं करते हैं, मेंशन करना है आपको. और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होना चाहिए, राइट. थर्ड पॉइंट है आपका कंपोनेंट आपका रिसर्च प्रपोजल का, वो है इंट्रोडक्शन, राइट. इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द कोर ऑफ योर प्रपोजल. इसमें भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, टू सिचुएट योर रिसर्च विद इन अ लार्ज एकेडमिक एंड सोशल फ्रेमवर्क, राइट. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है. दूसरा यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम होता है, राइट. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. दिस इज़ द गैप और कॉन्फ्लिक्ट और इशू योर रिसर्च एड्रेसेस. ये भी कई टाइप का होता है प्रॉब्लम्स. जैसे पहला टाइप है कंसेप्चुअल, दूसरा है थियोरेटिकल, तीसरा है मेथडोलॉजिकल, फोर्थ है कॉन्टेक्चुअल, राइट. सो बेसिकली many studies discuss colonialism, but few analyze psychological identity reconstruction. That becomes your research proposal. फिर आता है research question. So these guide your entire research. A good research questions are specific, analytical, researchable, right? इसमें objectives भी होते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव में ये गोल्स होते हैं, इन्हीं को आपको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, एक्सप्लोर करना है, कंपेयर करना है. सो ऑब्जेक्टिव शुड डायरेक्टली कनेक्ट विद द रिसर्च क्वेश्चन. नेक्स्ट है इसमें सिग्निफिकेंस. ये हमने कल भी डिस्कस किया था डिटेल में. सो सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वाई शुड एनीवन केयर अबाउट योर रिसर्च, क्यों कोई पढ़ेगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. सो ये इसमें भी 3 टाइप के होते हैं. ये पहला होता है एकेडमिक, मतलब कोई नई नॉलेज है. दूसरा है थियोरेटिकल, मतलब कोई नया फ्रेमवर्क है. और फिर आता है सोशल, ये रियल वर्ल्ड एविडेंस, राइट. फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका रिसर्च प्रपोजल का, वो है लिटरेचर रिव्यू, राइट. Literature review is like positioning your research. It shows that you are entering an existing academic conversation. इसमें इसका डीप स्ट्रक्चर होता है कि लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली आप बताते हैं कि व्हाट अदर्स हैव स्टडीड, हाउ दे स्टडीड इट, व्हाट दे फाउंड एंड व्हाट इज मिसिंग,
राइट। तो इसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे इसमें रिसर्च गैप की बात होती है, रिसर्च गैप्स की बात होती है। विदाउट अ गैप नो रिसर्च जस्टिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई रिसर्च गैप है ही नहीं, तो फिर आप क्या ही रिसर्च करोगे। तो रिसर्च गैप होगा तभी ही रिसर्च होगी। तो लिटरेचर रिव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये भी कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ गैप्स होते हैं, जैसे कि अंडर रिसर्च टॉपिक, कि कोई टॉपिक छोड़ दिया गया, उसको रिसर्च ही नहीं किया गया, या फिर जितना रिसर्च इस पर हो सकता था वो नहीं किया गया। या फिर आपने कोई नया पर्सपेक्टिव देख लिया जो पहले किसी ने नहीं देखा, तो वो भी एक तरह का रिसर्च गैप है। या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग है, किसी ने कुछ और फाइंड किया और आप उससे बिल्कुल अलग फाइंड कर रहे हो, तो ये भी रिसर्च गैप है। या कोई इग्नोर्ड कॉन्टेक्स्ट था, इग्नोर कर दिया गया किसी को, किसी पॉइंट को, तो वो भी रिसर्च गैप है। सो लिस्टिंग समरी, मतलब इसमें क्या इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो लिस्ट करते हैं समरीज को विदाउट एनालिसिस। इसकी जगह आप इसको कंपेयर कीजिए, इवेलुएट कीजिए और क्रिटिक कीजिए। फिफ्थ है रिसर्च मेथडोलॉजी, और इस पेपर का नाम भी यही है, ये बैकबोन है। what it really does, it explains how your research will be conducted। इसमें आप रिसर्च डिज़ाइन बताते हो कि आपकी जो 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 रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव होगी या फिर क्वांटिटेटिव होगी। हम क्योंकि लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव नहीं होगी। और हमारी रिसर्च का डिज़ाइन वो थियोरेटिकल होगा और एनालिटिकल होगा। इसमें आप मेथड्स भी बताते हो कि आप क्लोज रीडिंग करोगे, टेक्सचुअल एनालिसिस करोगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी होगा, मतलब दिस इज़ योर लेंस जो भी आप करोगे। जैसे आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे काम करोगे, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, किस पर काम करोगे। सो इस पे बात होगी। थियोरी इज़ नॉट डेकोरेशन, इट शेप्स इंटरप्रिटेशन, राइट। इसमें टूल्स भी यूज़ होंगे, जैसे कि टेक्स्ट, आर्टिकल्स, क्रिटिकल रिसोर्सेज, ये सब। सिक्स्थ है यहाँ पर expected outcomes। Sorry for this handwriting, अरे यार, राइट। या फिर एक्सपेक्टेड सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो आप। इट प्रोटेक्ट्स योर कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। ये कई तरह की होती है, जैसे कि न्यू इंटरप्रिटेशन है, थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन है, फिलिंग रिसर्च गैप है, तो इसकी बात करेंगे। फिर आता है टाइमलाइन, ये फिजिबिलिटी चेक होता है। शो योर रिसर्च इज़ प्रैक्टिकल मैनेजेबल। इसमें आप लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, राइटिंग, एडिटिंग, ये सब दिखाते हैं। फिर होता है रेफरेंस, मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए होता है। इट शोज योर रिसर्च इज ग्राउंडेड इन स्कॉलरशिप, और यू हैव टू फॉलो अ मैनुअल स्टाइल। इट कैन बी MLA और APA और शिकागो, और कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग होना चाहिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेजरिज्म को अवॉइड करो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, और रिसर्च डेप्थ को शो करो, राइट। So basically, everything must be connected. Title, which reflects topic, right? Introduction, title which reflects the topic. Introduction defines the problem. Literature review is, it shows gap, and methodology addresses the problem, and outcomes solve the gap, right. So a research proposal is not just a collection of sections, it's a logical connected argument. So a strong research proposal is conceptually clear, it's structurally organized, theoretical grounded, and methodological sound, and academically persuasive. So each component of research proposal is not separate, they work together to prove that your research is meaningful, valid, and worth doing, right. अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं इस क्लास के, राइटिंग द प्रपोजल। सो this part is where most students struggle, not because they lack ideas, but because they don't know how to present those ideas academically. So we'll not just understand what to write, but how to write like a researcher. So first of all, we need to understand the writing mindset. किसी भी चीज़ को लिखने से पहले you must shift your mindset. अब देखो, जैसे छोटे से मैं एक बात कहती हूँ, स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है कि आई विल एक्सप्लेन माई टॉपिक, राइट। बट रिसर्चर माइंडसेट होता है आई विल आर्ग्यू, आई विल जस्टिफाई एंड एस्टेब्लिश माई रिसर्च,
तो गोल्डन प्रिंसिपल यही है, अ रिसर्च प्रपोजल इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ पर्सवेसिव. सो इन दिस, मतलब in writing proposal, you are trying to convince your supervisor, your institution and the academic community, right? So most students write randomly. That's the biggest mistake. So you need to follow a structured process to write a research proposal. Step 1 is brain dump. रॉ थिंक करना है. आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको जितने भी आइडियाज़ आपके आते हैं उन सबको फ्रीली लिख लेना है. डोंट वरी अबाउट द ग्रामर और स्ट्रक्चर, उसको कहीं भी फ्रीली लिख लो. जैसे कि आपको आइडिया है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आइडेंटिटी का, या जैसे हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस इन थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है. तो वहाँ पर कई सारे आइडियाज जैसे आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, एचवे, कल्चर, तो वो सब आपने लिख लिया. जो भी आपको रॉ थिंकिंग थे सब लिख लिया. अब वो सारे आइडियाज़ को आपको ऑर्गेनाइज करना है. नाउ यू स्ट्रक्चर देम इनटू टॉपिक, प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड अप्रोच. ये सब मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप सब लिख सकते हैं. मतलब जो भी आपके फ्री आइडियाज़ थे, रॉ आइडियाज़ थे, उनको आपको स्ट्रक्चर करना है. टॉपिक बताना है, उसमें से प्रॉब्लम ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है और अप्रोच करना है. उसके बाद आप एक स्केलेटन काइंड ऑफ बना लीजिए, राइट. उसमें आप टाइटल, हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, इस तरह कुछ भी लिख सकते हो. मतलब बिफोर राइटिंग फुल पैराग्राफ्स, प्रिपेयर द टाइटल, हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स अंडर ईच सेक्शन, ठीक है. मतलब जो जो आपके माइंड में रफली पॉइंट आ रहे हैं वो सब लिखते जाइए. अब इन सब आइडियाज़ को, जो भी आपके माइंड में आइडिया आया था, टॉपिक, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, अप्रोच, जो भी आया था, उनको फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में उनको चेंज करना है. उसको फिर रिवाइज करना है, रिफाइन करना है. मतलब क्लैरिटी इसमें इम्प्रूव करनी है, रिपीटिशन रिमूव करना है, आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथ करना है. और आपका राइटिंग स्टाइल जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत ही फॉर्मल होगा, क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा, एनालिटिकल होगा. कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, इमोशनल टोन, स्टोरी टेलिंग स्टाइल नहीं. आप नॉवेल नहीं लिख रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं. तो इसी वजह से आप एकेडमिक वोकेबलरी यूज़ कीजिए, लॉजिकल फ्लो में लिखिए, ऑब्जेक्टिव टोन में लिखिए. जैसे कि आपको मान लीजिए आप थिंग्स फॉल अपार्ट पर आप थीसिस लिख रहे हैं, तो आप ये मत लिखिए द नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं लिखना है. आप ये लिखिए कि दिस नॉवल ऑफर्स अ क्रिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. आप इस तरह की लैंग्वेज लिखिए. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए. सो हर एक सेक्शन को प्रैक्टिकली लिखिए, सेक्शन बाय सेक्शन जाइए, किस तरह से लिखना है. मतलब जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है सपोज, तो इंट्रोडक्शन में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा समझना पड़ेगा. आपको पहले ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसको नैरो करना पड़ेगा, फिर आपको आप जो रिसर्च करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स की कि आप क्या क्या रिसर्च करना चाहते हो आपको वहाँ स्टेट करने पड़ेंगे, राइट. हम तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एकदम से आप नहीं जा सकते कंक्लूजन पे. आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको जनरल टू स्पेसिफिक जाना पड़ेगा. आपको सिर्फ चीज़ें समराइज़ नहीं करनी है, बल्कि उनको एंगेज करना है क्रिटिकली, राइट. इसमें आप ये भी बोल सकते हो, जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्कॉलर ए ने ये कहा है, स्कॉलर बी ने ये कहा है. मतलब स्कॉलर ए ने ये कहा है, स्कॉलर बी ने आर्ग्यू किया है, और मेरी स्टडी ये है. मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो. सो ऑलवेज एंड विद रिसर्च गैप. और अपने रिसर्च प्रपोजल में आपको रिसर्च गैप बताना है. जैसे कि मैं अपने टॉपिक की बात करती हूँ. मेरा टॉपिक है अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दलित एस्थेटिक्स एंड संस्कृत एस्थेटिक्स. सो एस्थेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है. तो मेरे रिसर्च प्रपोजल में जो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया वो ये किया कि अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें तो जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, यानी कि संस्कृत लिटरेचर है, वहाँ पर सेंटिमेंट्स की बात होती है, रसा थियरी है पूरी तरह से है. और जो ऑथर्स हैं वो बताते भी हैं कि इस इमोशन में ये रसा काम करता है, इसमें ये काम करता है, राइट. मतलब पूरी थियरी है. दलित लिटरेचर की भी अगर हम बातें करें तो वो भी इमोशंस बताते हैं. वहाँ पर भी आर्गुमेंट होते हैं, वहाँ पर
प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पर पेन है, सफ़र है, लेकिन उस पेन में कौन सी रसद थियरी फॉलो हुई है ये कोई नहीं बताता. सो दिस इज़ द लिटरेचर गैप, राइट. तो वहाँ से मेरा जो रिसर्च है वो शुरू होता है कि अगर कोई दलित किसान है, कोई दलित लेबर है, वो भूख से, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसे भूख लग रही है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो ये रसा थियरी में कौन सा रस आएगा कि वो जो गरीब किसान है, गरीब मज़दूर है, उसकी जो, उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसको जो समाज में इक्वालिटी नहीं मिलती है, उसको भगा दिया जाता है सब जगह से, उसे उसे अनटचेबल फील कराया जाता है. तो जो अनटचेबिलिटी वो जो फील कर रहा है, वो एस्थेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एस्थेटिक्स में उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, वो संस्कृत एस्थेटिक्स में अगर हम बात करें तो वो चीज़ वहाँ नहीं है, क्यों नहीं है. तो दिस इज़ द रिसर्च गैप. तो वहीं से ये टॉपिक बॉर्न हुआ, राइट. अब आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आया होगा. सो जब आप मेथडोलॉजी लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना है, स्पेसिफिक होना है, राइट. टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड, थ्योरी, ये सब आपको बताना है. आपका जो राइटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आप एक्शन वर्ड्स यूज़ कीजिए, एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट करने के लिए, राइट. सो जब आप एक्सपेक्टेड आउटकम लिखेंगे तो लॉजिकल होना है, इमेजिनरी नहीं लिखना है, राइट. तो आई थिंक ये काफ़ी मैंने बता दिया है. मैंने आपको टॉपिक भी दिया है एक प्रपोजल लिखने के लिए, यहाँ दिया था ना ये टॉपिक, यस ये वाला, ये टॉपिक मैंने आपको दिया है. इसको आप लिखिए, इसमें आप देखिए कि इसकी वॉग राइटिंग, मतलब इसका टाइटल ढूंढिए पहले. तो ये टाइटल नहीं है, ये तो अगर है भी तो ये बहुत ब्रॉड है. आपको हाईली फोकस टाइटल ढूंढना है रिसर्च प्रपोजल का, ठीक है. और आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर आपको ठीक से लिखना है जो हमने डिस्कस किया. क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रामर चेक कर लेना उसकी, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट. तो बेसिकली आपको ये लिखना है. और जब आप प्रपोज़ल लिख रहे होगे तो आपको क्लियरली सोचना है, लॉजिकली आपको आर्ग्यू करना है, स्ट्रक्चरली आपके, मतलब आपके जो भी आइडियाज़ है उसको स्ट्रक्चर करना है, और एकेडमिकली उसको कम्युनिकेट करना है, राइट. सो एट द एंड आई कैन से दैट अ रिसर्च प्रपोजल इज़ वेयर योर thoughts come structured knowledge and your curiosity becomes a formal academic inquiry. सो इसी के साथ ये क्लास और ये जो पेपर था आपका रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट हुआ. वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस of research methodology. I hope this journey has not only enhanced your academic understanding but also strengthened your confidence as independent thinkers and researchers, from understanding the fundamentals of research, exploring methodologies, and mastering style manuals, to developing topics and drafting research proposals. You have engaged with each aspect thoughtfully and sincerely. So remember, research is not just about collecting information, it's about questioning, analyzing, and contributing something meaningful to existing knowledge. The skills you have developed there, critical thinking, structured writing, academic integrity, will stay with you far beyond this course. As you move forward, I encourage you to remain curious, keep questioning, and approach every idea with depth and clarity. So because why? Your research voice matters. With the right approach, it can create a significant impact. So thank you for your active participation and dedication throughout this course. Wishing you all the very best for your academic journey ahead. So हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर.